Good morning, student. My screen is visible, beta. Aditi, Akshat, Amisha, Charu, Jaya, Pranjali, Pratibha. Okay. Voice audible hai, beta? Okay. Now see, today we are on the last topic of this third unit. That is a vertical MOSFET. By the Monday, I will upload your assignment. Not Monday, by the end of next week. Because last unit we are going to start and you just start doing assignment. I will give you sufficient time of 15 days to get it complete. Okay. Now see, what is a vertical MOSFET? A type of metal oxide semiconductor FET that is going to be used to switch large amount of current. The power MOSFETs use a vertical structure with source and drain terminals at the opposite side of the chip. बेसिकली वर्टिकल ओरिएंटेशन क्या करता है, एलिमिनेट करता है क्राउडिंग एट द गेट एंड ऑफर्स लार्जर चैनल विड्थ एंड इट इज फेमस फॉर द लो कॉस्ट एंड हाई performance. They are proposed as a possible device architecture to allow continuous scaling along the ITRS roadmaps. I just suggest you to write out first para. That is going to be कि बेसिकली हमें जहां पर भी वेयर वी यूज इट वेयर अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर इज अ लार्ज एंड वर्टिकल स्ट्रक्चर्स में हम क्या करते हैं, सोर्स एंड टर्मिनल एट द अपोजिट साइड ऑफ द चिप एंड इट एलिमिनेट्स क्राउडिंग एट द गेट ऑफ अ लार्जर चैनल and it is low cost and high performance also, and they are proposed for the possible device architecture that is going to allow continued scaling along with the ITS. Write down, I'm giving you 2 minutes. Yeah, I will upload the lectures. उस दिन मैं मीटिंग एंड करी थी तब मैंने एक मैसेज, आई डोंट नो हु डिड अपलोड. डेफिनेटली आई एम अपलोडिंग एंड आई विल अपलोड. जस्ट आई नीड टू अपलोड एज पर योर टाइम टेबल, सो दैट कुड बी द इशू, और अदरवाइज करती हूँ मैं जैसे भी. ठीक है बेटा. Have you complete beta? Fine. Now a time. लिख लिया था क्या बेटा? प्रतिभा, अदिति? Yes. Yes, ma'am. Okay. Now vertical MOSFET is what? A type of metal oxide semiconductor. See, ये तो हो गया था. Now ahead with this,
if we move, the recent development of vertical CMOSs that has been largely driven by the two factors that is observed in the industry. As I told you in the last class, in the end of that particularly vertical MOSFET is at very advanced level of MOSFET after the DG MOSFET and FinFET, and it is basically used in industrial purpose. So what is the reason? This question could ask in a short answer type of you, why vertical MOSFETs is largely being used in industry. So you need to give two reasons which I am mentioning here. The first is potential as strong as a nano classical CMOS contender in a continuing along with IRS roadmap. Secondly, application of low standby power and RF device market due to the low cost process and compatibility with the CMOS technology. PMOS can be mainly classified, ये तो आगे आ गया, तो ये दोनों रीजन लिख लो कि इंडस्ट्री में इसको क्यों ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज पोटेंशियल जो रहता है दैट इज गोइंग टू बी एज स्ट्रॉन्ग नॉन क्लासिकल CMOSes as used to be, and second particularly जो low standby power होती है और RF devices in the market है that is going to be low cost process रहती है, उसके कंपेयर में ये low cost process भी और compatible भी. और बेसिकली दो तरह के VMOS अपन डिस्कस करते हैं फैब्रिकेशन एंड ऑल में, that is going to define the channel and the source region, that is epitaxy, and second is ion implantation. ये तो आगे अपन अभी और पढ़ेंगे, ये दो रीजन लिख लो तुम लोग. आज जहां तक होगा अपना ये यूनिट कंप्लीट हो जाए. कंप्लीटेड. अब इसकी फैब्रिकेशन में जो दो प्रोसेस होती है एपिटैक्सी एंड इम्प्लांटेशन, that process we are going to discuss with the paper which I shown you in the last class. ओके इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे मिड टर्म में भी पूछे जा सकते हैं, और उसमें भी जैसे अब तुम्हारा पेपर पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया है ना, स्मॉल क्वेश्चंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड और इस तरह से. ओके नाउ this was the paper we were discussing. Not discussing just MOSFETs for high performance low cost. ये बाहर का पेपर है जिसमें इसको इवोल्यूट किया था, and that I found more better than any basic slides है ना. ठीक है,
तो ये वर्टिकल मॉसफेट जो है प्रपोज फॉर द पॉसिबल डिवाइस आर्किटेक्चर दैट इज अलाउ फॉर कंटिन्यू, ये तुमने उस दिन भी लिख दिया था, स्केलिंग अलोंग द ITRS रोड में। द प्रोसेसिंग स्टेप्स जो है इसमें वो दो होती है, एक तो इपिटेक्सी होती है, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग स्टेप इज वन इज इपिटेक्सी एंड सेकेंड इज द ion implantation. Epitaxy and ion implantation. ये तो मैंने लिखवा दिया था तुम्हें यहाँ तक शायद, कि हम इसमें इपिटेक्शन एंड इम्प्लांटेशन ऑफर करते हैं फॉर अ हाई विच ऑफर हाई प्रिसीजन एंड reproducibility for forming thin doped region in the vertical plane. ठीक है, नाउ सी बेसिकली क्या चेंज आता है आर्किटेक्चर में, थोड़ा स्लाइड सा चेंज होगा। इन द टू सेक्शन वी डिवाइडेड दिस पेपर। सी ये जो है पर्टिकुलरली लेआउट्स है, वो ये गेट सोर्स ड्रेन वही रहता है, इसमें मल्टी गेट्स नहीं रहते तुम्हारे, ठीक है। बट यस ऑफ कोर्स देयर इज अ स्लाइट चेंज इधर, अगर हम इसके डिजाइनिंग्स में चेंज करें तो ये ड्रेन है, ये सोर्स है, ये गेट है, ठीक है। मिडिल वाले की बात करें, जैसे टॉप जो है वो लेटरल मॉसफेट है, मिडिल जो है वो वर्टिकल डबल गेट मॉसफेट है। डबल गेट मॉसफेट ये है, और लास्ट में बॉटम की बात करें तो ऑल अराउंड वी मॉस्ट है, ठीक है। अब जो चीज अपन ने यहाँ पर मैंने तुम्हें बताई थी कि टू टाइप से इसके फैब्रिकेशन होते हैं, वन इज एपिटेक्सी एंड अनदर इज आयन इम्प्लांटेशन। सो दीज आर द जेनरिक आर्किटेक्चर। ये ऊपर वाला एपिटेक्सी का है और नीचे जो है ये आयन इम्प्लांटेशन का। दिस आई जस्ट रिकमेंड यू टू डिजाइन मेक। तो ये स्टार्टिंग में तो बेसिक इसका बता दिया कि किस किस तरह से हो सकते हैं। और ये जो गेट ऑल अराउंड जो तुम्हारा वी मॉस्ट होता है उसमें से गेट यहाँ है, दिस इज अ डिफरेंट आर्किटेक्चर। वर्टिकल मॉस में देखो मीन्स ये है कि ड्रेन और सोर्स दोनों एक ही जगह पर है, दिस इज अ विड्थ एंड दिस इज अ ड्रेन एंड दिस इज अ सोर्स एंड गेट यहाँ। ये बनाने की तो जरूरत नहीं है, बट हाँ ये जो इसके फैब्रिकेशन की दो प्रोसेस हैं ये जरूर आई जस्ट से कि ये फर्स्ट वाला जो है जैसे इपिटेक्सी है, इसमें क्या है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, NPN अपन ने बनाया है, एंड गेट ऑक्सीडाइज यहाँ हो रहा है और गेट इलेक्ट्रोड यहाँ पर हो रहा है, ये बना लो। और आयन इम्प्लांटेशन में क्या हो रहा है, दिस इज माई सोर्स, दिस इज गोइंग टू बी द ड्रेन एंड दिस इज N and this is a P type of substrate and here it is going to be gate. बेसिकली इपिडेक्सी मेथड जो रहता है दैट इज डेवलप टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय डिपॉजिटिंग द पॉलीगेट्स एंड ऑल। जनरली यही है कि जैसे फिनफेट डीजी मॉसफेट हमने देखा, इसमें वही हाई परफॉर्मेंस जैसे ही वही रहता है ना, ह्यूमंस आर नेवर ह्यूमंस desires are never ending when he achieve one target desired for another. So same thing with the MOSFET research also. FinFET DG MOSFET also even though better than the normal gates, but then also their cost is very high, and the performance wise also we are requiring much higher devices and all. Then that is going to be moved with the वर्टिकल मॉसफेट। तो वर्टिकल मॉसफेट में हम क्या करते हैं, तो गेट इलेक्ट्रोड और गेट ऑक्साइड की लेयर फॉर्म करते हैं एंड देयर इज सडन चेंज इन दैट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड। फर्स्ट तुम ये बना लो, फिर तुम्हें क्या लिखना है ये मैं बता दूं।
बना लिया? अब इसमें जनरली यही है कि जो क्लासिकल इपिटेक्स ग्रोथ वी मॉस्ट है, ये वाला मीन्स द चैनल लेंथ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आई एम लेटिंग यू नो द चैनल लेंथ जो रहती है डाउन टू 70 mm प्रिसाइज रहती है इसमें थिकनेस ऑफ अ सिलिकॉन फिल्म यूजिंग LPCVD क्रिस्टल वेपर डिपोजिशन. साइड वॉल इंटरफेस जो रहती है दैट इज क्वालिटी वाज एनहांस्ड बाय द डिपोजिशंस एंड ऑल. ठीक है. Basically, why we need this? So compared to homogeneous doped body, this delta doping profile serves to reduce the hot carrier effects due to the reduced average brain electric field. So what it is going to be done, that is it improves the breakdown voltage. However, जो application of the device रहती है RF application, that is going to limit it due to the large overlap capacitance between the gate and the source drain. So a selective epitaxy method क्या करता है, that was proposed to solve the problem by depositing the polygates layer precisely to the selective epitaxy growth of P plus and P plus junctions. Therefore, it is going to reduce the overall overlap regions. Okay, and because of the important issue in inducing the severe parasitic bipolar effects. ठीक है. रिप्लेसमेंट ऑफ गेट स्कीप की भी बात ये तुम्हारे नहीं है, हायर लेवल का है ये तो. हाँ ठीक है. Now second आता है implantation process. तो that is unlike the epitaxy process. ये implantation में हम क्या करते हैं, channel drain source regions जो रहते हैं define करते हैं by implantation. And this approach has the significant advantage of simplicity and full compatibility with conventional planar CMOS technology. In other words, we can say on current in such implanted device was enhanced by implantation of GE germanium into the channel region. ठीक है. The impact of the side wall interface orientations जो रहता है, gate oxide thickness, interface state density and inversion लेयर की जो मोबिलिटी रहती है वो सब भी इसमें वर्कआउट होती है. ठीक है. ये तो इन दोनों प्रोसेस का मतलब ये है कि हाउ मेनी टाइप वी कैन डू द फैब्रिकेशन ऑफ VMOS. सो वन इज epitaxy and another is an implantation, and if it is going to be asked the difference between epitaxy and ion implantation, then you need to just distinguish by making this diagram and showing the difference. Overall, the capacitance problem जो epitaxy VMOS की रहती है, that is by addressed
that is incorporated a process of replacement of the gate as shown in this. अब एक और issue आता है ion implantation में, that is going to be the overlap capacitance. So overlap capacitance जो है इसको अगर मुझे avoid करना है, overlap capacitance का meaning यही है कि a number of capacitors are there and their charging and discharging are overlapping. Then for avoiding that issue, the above diagram, that is a replacement of gate scheme. In that what they did, सोर्स और ड्रेन को यहाँ करके ये जो है पी प्लस पॉली की लेयर यहाँ कर दी है. Phosphosilicates is here, this glass is here, polygate is here. Here what they did, they just replaced the gate position. In that thing, what happens after reaching of the dummy gate, polygate was self-aligned with the previous grown channel and therefore overlap region was largely limited. ठीक है. Some design issues used to be there. Okay, you just draw the diagram. Theory तो तुम्हें book वगैरह या जैसे ढूंढोगे तो मिल जाएगी. Replacement gate scheme. So what is a replacement gate scheme? Just to avoid the overlap capacitance problem. Overlap gate capacitance problem is what? In a particular VMOS, a number of capacitance used to be there and their charging discharging used to be there. So just to overcome that overlapping, हम ये गेट स्कीम अप्लाई करते हैं जिसमें पी प्लस पॉली और फास्फो सिलिकेट ग्लास लेते. डू इट फास्ट. ओके बेटा, इसमें एक और चीज जो रह गई है, दैट इज दिस. डिजाइन इशू विद द VMOS. डिजाइन इशू विद द VMOS में ये रहता है डिजाइन इशू विद द VMOS में ये रहता है कि पर्टिकुलरली जेनेरिक VMOS जो रहते हैं दैट उसमें चैनल जो फॉर्म होते हैं वर्टिकली साइड वॉल और ईच पिलर्स से रहते हैं. सोर्स और ड्रेन्स आर असाइन टू ईदर टॉप और द बॉटम ऑफ द पिलर्स. इस तरह से रहता है जेनेरिक वर्टिकल मॉसफेट. सी ये डायग्राम्स और ये मैं इसलिए भी तुम्हें कह रही हूँ, थ्योरी तो लिटिल बिट आई एम एक्सप्लेनिंग, यू विल गेट, बट डायग्राम से एटलीस्ट तुम अगर नेट पे भी ढूंढोगे तो यस दिस इज अ जस्टिफाइड डायग्राम दैट यू नीड टू ड्रॉ. और अगर शॉर्ट नोट भी आता है तो आफ्टर एक्सप्लेनिंग व्हाट इज अ वर्टिकल मॉसफेट यू नीड टू एक्सप्लेन द epitaxy and implantation process, implantation fabrication steps. Fine. Apart from that, what you need to explain is कि पर्टिकुलरली एक तो epitaxy और implantation का डिफरेंस भी एक आध बार पूछ लिया गया है, वो तुम्हें देखना है. और अगर व्हाट इज अ रिप्लेसमेंट गेट स्कीम इन अ वर्टिकल मॉसफेट तो तुम ब्लैंक ना रहो. द टॉपिक यू नीड टू बी गॉन थ्रू.
इसके अलावा एक जो है ये जेनरिक वर्टिकल मॉसफेट होता है. आई अगेन रिकमेंड यू टू ड्रॉ. इसमें हम क्या कर रहे हैं देखो, ये साइड वॉल्स ऑफ ईच पिलर कर देते हैं. एस एन डोप्ड सिलिकॉन की वॉल ले ली, ये हमारा यहाँ सोर्स है. दिस इज अ गेट ऑक्साइड. एन डोप्ड सिलिकॉन इज हियर, ड्रेन इज हियर. सी हियर आर्किटेक्चर्स जो है इसमें गेट ऑक्साइड, दिस इज अ ड्रेन, दिस इज एन डोप्ड सिलिकॉन है, तो ये सोर्स है, ये ड्रेन है. दिस इज a p-doped silicon body है. Now see everywhere in each architecture which we study, whether FinFET or DigiMOSFET, source and drain used to be opposite, but here source is here and drain is in the vertical position, and gate is here n-doped silicon के पास. So n-doped poly silicon gate is there. The source and drain can be assigned to either the top or the bottom of the pillar, but it is apparent. See, सोर्स एंड ड्रेन कैसे हैं, टॉप ऑफ द पिलर के समान है. दैट इज अपेरेंट फ्रॉम द फिगर. कंसिडरेबल एसिमेट्री इज एविडेंट फॉर दिस रीजन. ये लिख लो. एंड द बॉटम इम्पैक्ट रीजन कैन बी फॉर्म्ड बाय एन एंगल्ड इम्प्लांट फॉलोड बाय अ ड्रिवन. ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये सोर्स एंड ड्रेन किस तरह से इसमें डिजाइन है. Meanwhile, I will take your attendance. Aditi, Akshat, Present, ma'am. Yes, ma'am. Amisha, Arpit, Yes, ma'am. Charu, Yes, ma'am. Jaya, Yes, ma'am. Komal, Nikhil. Yes, ma'am. Komal, are you there? Yes. Okay, Yes, Nikhil. ma'am. is there? Yeah. Pranjali, Pratibha, Yes, ma'am. Present, ma'am. yeah. Priyanka, Present, Sai, ma'am. Shivani, Yes, ma'am. Shubham, Yes, ma'am. मैम मेरी प्रेजेंट नहीं हुई. हाँ शुभम. मैम साक्षी. साक्षी, wait a minute. मैम मेरी भी प्रेजेंट मैम, लगानी है. मेरी भी प्रेजेंट लगानी मैम. निखिल. Now see. हाँ मैम, निखिल भी. Okay. Okay, Arpit. मैम अर्पित. यस थैंक यू. इसमें अब लास्ट यही है कि ये बना लिया कि तुमने जेनरिक वर्टिकल मॉसफेट, फिर इसकी आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करना है कि सोर्स और ड्रेन जो एज अ पिलर रहते हैं, एंड देन इट इज गोइंग टू बी. बना लिया कि ये तुम लोगों ने? इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, बॉटम जंक्शन अलोंग विद द करंट शेयरिंग, ये इस तरह से है. डेप्थ वर्सेस दिस, इतना डिटेलिंग में नहीं जाना है तुम्हें, तो एज अ शॉर्ट नोट तुम्हें इसको लर्न करना, मतलब ये है क्या, ये हमें आना चाहिए. दैट मच वी कंप्लीटेड. इसके बाद का जो है ये हायर रिसर्च लेवल का डिस्कशन. ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस यूनिट. आई एम जस्ट रिकॉलिंग इन अ 2 minute first of all this unit, and just letting you aware what we are going to study from Monday in a next unit. हुआ तो भले ही मैं आज, नहीं तो फिर ओके फाइन. मंडे इज व्हाट, मंडे को क्या डेट है? ठीक है, 15 है आज. मैं हो सका आज मुझे टाइम मिला तो मैं आज पोस्ट कर दूंगी. 31 तक तुम्हारा टाइम रहेगा. तब तक शायद अपनी 4th लास्ट तुम्हारी यूनिट हो जाएगी, और मीनवाइल तुम करते रहना. ठीक है, चलो. दिस इन दिस यूनिट
Basically, it was a CMOS scaling unit which we completed today. Scaling is nothing but optimization. Means whatever circuit I have, उसको मैं कम space में कम resources में नहीं. Device हम high quality use करते हैं, but in a smaller size with a high efficiency कैसे बनाएंगे? उसके लिए interconnected issues, delay and device issues that is going to be there. उसके बाद हमने मेन जो इसके टॉपिक्स थे, एक तो इसमें मेन तो तुम्हारा जो डिवाइस है, डिवाइस इशू, इंटरकनेक्ट इशू, इंटरकनेक्ट डिले, ये along with this FinFET, DG MOSFET and vertical MOSFET that we gone through. उसमें भी जो 1/s S फैक्टर है वो टेबल तुम सारी याद कर ले. DG MOSFET was double gate MOSFET that we study in detail. FinFET is my multi-gate device that is going to be there. It is going to use as a replacement on 2, 3 or 4 side of the channel wrapped around the channel and forming the double gate structures. And it is higher integration density compared with a planar MOSFET and all. Then we today vertical MOSFET industry purpose में use होते हैं. इनकी architectures जो है FinFET और other MOSFET से different है, but they are versatile with their low cost and high. Just relax. मैं next week तक मतलब ये है कि मई जून कोर्स हो जाएगा, उसके बाद एक या 2 रिवीजन ज्यादा नहीं करेंगे. एक सेकेंड, थैंक यू. हो रहा है सिस्टम, आई डोंट नो, वेट. अब ये जो यूनिट है तुम्हारी, इसमें why voice is not there? My mic is on बेटा. कट रही है इधर तो नेटवर्क प्रॉपर आ रहा है मेरे. ठीक है, चलो वैसे भी अपन कट रही थी. ओके, मेरा लैपटॉप क्यों स्लो चल रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा. इसमें अब तुम्हारे सारी जितनी भी नैनो डिवाइसेस हैं, जैसे फर्स्ट अपन पढ़ेंगे रेजोनेंट टनलिंग डायोड, दैट इज RTD. देन कूलम्ब डॉट्स एंड क्वांटम ब्लॉकेज. कूलम्ब डॉट्स एंड क्वांटम ब्लॉकेज जो है, इट इज नॉट अ 2 टॉपिक, इट इज वन ऑन द सेम टॉपिक. So quantum dot and Coulomb blockage पढ़ेंगे. Single electron transistor, that is said. Carbon nanotube is very important. After that, electronic band structure transport device, 2D semiconductors and electronic devices, graphene, then atomistic simulation. In that, my pattern will be, पहले अपन क्या करेंगे, रेजोनेंट करेंगे, फिर अपन सैट करेंगे, फिर CNT करेंगे, फिर ग्राफीन करेंगे. पहले हम इन डिवाइसेस को निपटाएंगे, उसके बाद कूलम्ब डॉट्स. दीज आर द सप्लीमेंट्री टॉपिक्स. कूलम्ब डॉट्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बट क्वांटम ब्लॉकेज ईच ईयर इट इज गोइंग टू बी आस्क्ड. बट यस, पहले जो डिवाइस डिस्क्रिप्शन एंड एप्लीकेशन है वो करेंगे. 2D सेमीकंडक्टर एंड ऑटोमेस्ट्री. बट यस, 7 to 8 lectures will be needed. This unit also you will find interesting. जैसे लास्ट यूनिट में 3 जो डिवाइसेस थी, DG MOSFET, FinFET, वर्टिकल MOSFET, ये तुम्हें थॉरली पढ़नी है. स्ट्रक्चर्स और ये मैंने एक्सप्लेन किए. इसके अलावा भी कुछ मटेरियल, क्योंकि लॉन्ग आंसर में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो तुम्हारे 10 या 2 मार्क्स में उसमें ये पूछा जा सकता है, जैसे बैंड स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, डिवाइसेस एंड एप्लीकेशंस, ऑटोमेस्टिक सिमुलेशंस, ये सारा. ठीक है, सो सेकेंड यूनिट इज क्लियर, सॉरी थर्ड यूनिट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा. If any doubt, please feel free to ask. ठीक है, ओके. तो मैं आज असाइनमेंट अपलोड कर रही हूँ तुम लोगों का, और वो तुम्हें 31 मई तक करना. ठीक है, ओके, सी यू.